Go. Yes, very good afternoon, boys and girls. I welcome you all to yet another session of 11th standard secretarial practice. 11th standard के secretarial practice में आप सभी लोगों का स्वागत है. So far we have started learning the most important form of business organization, that is called as a joint stock company. The joint stock company is a voluntary association of persons who have come together to carry on a business for a lawful purpose. For a lawful purpose. For a lawful purpose. That purpose may be profit motive. That purpose may be not for profit motive. In case of joint stock company, the ownership is different and management is different. The ownership lies with the shareholders. The ownership lies with the shareholders. The management is done by the board of directors. The entire share capital of the company is divided into small part, and each small part is called as share, and the person who buys the share is called as shareholder, and shareholder is the ultimate owner of a joint stock company. The elected representatives of the members are called as directors. The directors collectively form a committee which is called as board of directors, and the board of directors are entrusted with the responsibility of day-to-day management of the company. The profit of the company is distributed to the owners. जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो प्रॉफिट होगा वो सोल ट्रेडर लेकर जाता है, पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट जाएगा वो पार्टनर का प्रॉफिट हो जाता है. वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो प्रॉफिट होगा वो किसका प्रॉफिट होगा? शेयर होल्डर्स का. लेकिन शेयर होल्डर्स को ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसे कहा जाता है डिविडेंड. क्या कहते हैं इसे? डिविडेंड. पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज डिविडेंड. Portion of the profit which is distributed to the shareholder is called as dividend. Is called as dividend. और कितना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट मिलेगा? जितनी अपनी शेयर होल्डिंग है. अगर मेरी किसी कंपनी में 10% शेयर होल्डिंग है तो प्रॉफिट में मेरा कितना हिस्सा होगा? 10%. मेरा 1% है तो प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा? 1%. जितनी मेरी होल्डिंग, जितने अमाउंट की मेरे पास शेयर्स, उतना अमाउंट का मेरा शेयर इन प्रॉफिट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So in case of joint stock company, ownership is different and management is different. Ownership lies with the shareholder. Management lies with the board of directors. The board of directors are the elected representative of the members. आया ना? Yes or no? अब आगे बढ़ते हैं. Definition of joint stock company. I told you that the joint stock company form of organizations are run as per the Companies Act 2013. Yes or no? The Companies Act 2013. The Companies Act 2013 is applicable to every joint stock company. A joint stock company operating in India can operate only as per the guidelines given in the Companies Act 2013. What is the act applicable to a partnership firm? The Partnership Act 1932. What is the act which is applicable to cooperative society? The Cooperative Society Act 1960. Pawar. What is the act which is applicable to a sole trading concern? Sole trading concern. What is the act which is applicable to sole trading concern? कौशल. Exactly. इसको बोलते हैं ध्यान देना. एक्ट नहीं है सोल ट्रेडिंग कंसर्न को. आप रोज क्लास में हो, एवरी डे यू आर प्रेजेंट इन क्लास. व्हाट इज द पॉइंट इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर? देयर इज नो पॉइंट इन जस्ट सिटिंग इन क्लास. इसलिए बोलता हूँ मत खोलो मोबाइल को, मत खोलो क्लास में. डिस्ट्रैक्शन, माइंड यहाँ पे जगह पे नहीं रहा तो इट्स वेस्ट ऑफ योर टाइम. अभी एडमिशन होने बाकी है, लाड़ी गोड़ी चल रही है. कुछ दिन के बाद शक्ति जब चालू होगी तब अपने आप मोबाइल नहीं देखा. मेरे को वो मालूम है. प्यार से डर नहीं लगता, थप्पड़ से लगता है. थप्पड़ से नहीं लेना, यहाँ डायलॉग उल्टा है. यहाँ प्यार से डर नहीं लगता, डर तो थप्पड़ से लगता है. वो जब पढ़ेगा तब समझ में आएगा. You should be able to answer. There is no separate act for sole trading concern. What is the act which is applicable for the joint Hindu family business, Suraj? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसका लेटेस्ट वर्जन है द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2006. उसी तरह से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को जो एक्ट एप्लीकेबल है वो है द कंपनीज एक्ट 2013. तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 20 में जॉइंट स्टॉक कंपनी का डेफिनेशन दिया गया है. मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है? 470. हमेशा याद रहे कितने सेक्शंस हैं? 470. आगे चल के कभी भी तुम्हें कोई पूछे कि कंपनीज एक्ट पता है क्या, कहाँ पता है,
कंपनीज एक्ट का पहला वर्जन था कंपनीज एक्ट 1956। पहला वर्जन क्या था? कंपनीज एक्ट 1956। यानी ये एक्ट पहली बार कब लाएगी? 1956 में। इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहला वाला था कंपनीज एक्ट 2003। तो ऐसे टाइम पर चेंज हुआ है, लेकिन शुरुआत कब हुई? कंपनीज एक्ट 1956। लेटेस्ट जो है वो है कंपनीज एक्ट 2013। ये 1956 2030 क्यों बोल रहे सर? क्यों बोल रहा हूं? तो ये डेफिनेशन जब पढ़ूंगा तो समझ में आएगा तुम लोग को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, अब वहां पे आपके सामने दिख रहा है। लॉ में पढ़ते कैसे हैं उसको भी तरीका होता है। हाउ डू यू रीड अ सेक्शन इज ऑल्सो अ थिंग टू बी अंडरस्टूड। अब अगर मैं किसी को बोल दूं कि तुम वेदिका इसको पढ़ो, तुम क्या पढ़ोगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ब्रैकेट में 20, 2 इंटू ब्रैकेट, ऐसे नहीं पढ़ते। इंटू ब्रैकेट या ब्रैकेट नहीं बोलते, वो ब्रैकेट में जो होता है वो होता है सब सेक्शन, यानी सेक्शन नंबर 2 का सब सेक्शन 20। कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 2 का सब सेक्शन 20 डिफाइन करता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब क्या। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। जब कभी भी बाहर कोई सेक्शन नंबर दिया है और ब्रैकेट में कुछ दिया है, तो ब्रैकेट में जो होता है उसका सब सेक्शन नंबर होता है, और जो बाहर होता है वो मेन सेक्शन नंबर होता है। समझ में आई बात? तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। कौन से एक्ट का? कंपनीज एक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कॉमा इंटू यूनिट कॉमा। मैंने क्या कहा? कानून बहुत मजेदार चीज है, और यहां पे हर शब्द का मतलब दिया जाता है ना? क्योंकि जैसे बोलिए प्यार, लव, लव हैज अ डिफरेंट मीनिंग, है ना? भाइयों वाला प्यार होता है, दोस्तों वाला प्यार होता है ना? पापा और बेटे का प्यार होता है, पेरेंट्स का और बच्चों का प्यार होता है। उम्मीद मत करो जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं बोलूंगा, जो तुम चाह रहे हो वो नहीं। भाई बहन का प्यार होता है ना? भाई भाई का प्यार होता है, बेस्ट फ्रेंड्स का प्यार होता है। तो अगर हम प्यार कहें, तो अगर मान लो लॉ में वर्ड दिया है लव, सो इट कैन बी डिफाइंड इन एनी वे। इट कैन बी अंडरस्टूड एज लव बिटवीन अ सन एंड अ फादर, इट कैन बी अंडरस्टैंड बिटवीन लव बिटवीन अ मदर एंड अ सन, इट कुड बी अंडरस्टूड एज लव बिटवीन टू फ्रेंड्स, इट कुड बी अंडरस्टैंड एज लव बिटवीन फ्रेंड्स एंड और फ्रेंड हु इज मालदार हु इज गिविंग पार्टी, है ना? मालदार पार्टीज, सो दैट इज डिफरेंट लव, है ना? पार्टी लव जिसे हम कहेंगे। So love can be defined in a different way and manner. Yes or no? Love can be understood in different way. So whenever there is such kind of words which can have multiple meanings, it is required to give the specific meaning of the word in the act. इसीलिए कानून में कोई अगर शब्द है जिसके मल्टीपल मतलब निकल सकते हैं, डबल मीनिंग निकल सकते हैं। डबल मीनिंग मतलब दो मतलब, जिन शब्दों के दो मतलब निकल सकते हैं, ऐसे शब्दों का साफ मतलब देना बहुत जरूरी है। ऐसे शब्दों का साफ मतलब देना जरूरी है, क्योंकि फिर अगर दो मतलब हुए तो हम कौन सा मतलब लेंगे? हमें हमारे मतलब से मतलब है ना? हमें जो है हमारे मतलब से मतलब है, हमें जो है हमारे मतलब से मतलब है, और जब हमें हमारे मतलब से मतलब है तो फिर हम वही मतलब लेंगे जिससे हमें मतलब है। मतलब समझे? समझे क्या मतलब? मतलब समझा कि नहीं समझा? हमें उसी मतलब से मतलब है जिस मतलब से हम मतलब रखते हैं, है ना? समझो मतलब? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स company incorporated under this act or under any previous company law. What is company? Company means a company. Company means a company incorporated under this act. Incorporated under this act or any or under any previous company law. क्या बोला जा रहा है? Company means a company incorporated अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ।
ठीक है, अब ध्यान दो। गुजराती एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड इज द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। गुजराती एंड गंगूबाई, गुजराती एंड गंगूबाई प्राइवेट लिमिटेड एक नई कंपनी बनने वाली है। गुजराती एंड गंगूबाई प्राइवेट लिमिटेड इज द न्यू कंपनी। अब कोई बात नहीं, अब तुम फंस गए हो। अब अगले 2 साल तक तुम्हारी उससे शादी होगी, तुम्हारे डिवोर्स होंगे, नहीं वहां नहीं जाएंगे हम, उतना आगे नहीं। देश की लोक संख्या कम करना है, पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। सो इट विल बी ओनली टू शादी, नो शादी, कंपनी, नो कंपनी, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, सो लिमिटेड, ओनली टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब समझ रहे हो? हाँ, तो बिना मतलब की चीजें मत घुसो। बात ऐसी है कि बात ऐसी है, डिस्ट्रैक्ट मत करो, मेरे कंसेप्ट से बाहर मत जाने दो। तो बात ऐसी है कि गुजराती एंड गंगूबाई प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बन रही है। ये कंपनी बनने वाली है, ये कंपनी बनने वाली है। अब ये कंपनी बन रही है 15 अगस्त 2022 को। ये कंपनी का फॉर्मेशन कब है? 15th of August 2022। The company is to be formed on 15th of August 2022। गुजराती एंड गंगूबाई प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी बनना जा रहा है 15 अगस्त 2022 को। मेरा सिंपल सा सवाल है दरक, आपको जवाब देना पड़ेगा कि 15 अगस्त 2022 ये 2013 के बाद आता है पहले आता है? 2013, साल 2013 के बाद आता है या पहले आता है? बाद आता है ना, ठीक है। अगर इनकी कंपनी बन रही थी 15 अगस्त 2013 को, तो 2013 के साल के अंदर के बाद आता है या पहले आता है? 2013 से पहले आया है, बाद में आया? बाद में आया ना वो। अगर इनकी कंपनी बन रही है 15 अगस्त 2005 को, तो 2013 से पहले आया, बाद में आया? अच्छा, रिलायंस कंपनी 2013 के बाद बनी है या 90s के दौर में बनी है? 1960s के दौर में बनी है ना? 1960s के दौर में बनी है। तब 1960s के दौर में जब रिलायंस कंपनी बनी थी, क्या तब कंपनीज एक्ट 2013 था? नहीं, तब एक्ट का नाम क्या था? कंपनीज एक्ट 1956। मतलब रिलायंस कंपनी रजिस्टर हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है रजिस्टर होना, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। 2013 के बाद जितने भी जॉइंट स्टॉक कंपनी बनी है, दे आर इनकॉर्पोरेटेड, दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोल रहा हूं क्वेश्चन में? 2013 के बाद जितने भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए हैं, जितने भी कंपनी रजिस्टर हुए हैं, दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। All the companies which are registered as joint stock company after 2013 are joint stock companies। यहां पे क्या दिया है? यहां पे और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। अगर सिर्फ अंडर दिस एक्ट होता और नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है? 2013 के बाद जितने कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, सिर्फ वही कंपनी है, बाकी जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है। तो रिलायंस कंपनी 1965 में लेट से अगर रजिस्टर हुई होगी, तो वो कौन से एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर है? कंपनीज एक्ट 1956। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट के अंतर्गत हुआ? कंपनीज एक्ट 1956। अगर ये और आगे के शब्द नहीं होते, तो रिलायंस कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या? नहीं। तो अगर उन्हें जॉइंट स्टॉक कंपनी होना होता, तो उन्हें कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से वापस से रजिस्टर करना पड़ता। लेकिन लॉ ऐसा डबल काम नहीं करवाता। लॉ चेंज होता है, लेकिन उसी लॉ के पहले वर्जन में भी आप रजिस्टर्ड हो तो आप कंपनी हो। तो कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत किसका रजिस्ट्रेशन हुआ है? रिलायंस कंपनी का। रिलायंस कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। यस और नो? कंपनीज एक्ट 1956। गुजराती एंड गंगूबाई प्राइवेट लिमिटेड, कंपनीज एक्ट 2013। So a joint stock company is a company, means a company, incorporated। incorporated का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा? आपके सामने आपकी टेक्स्ट बुक और पेंसिल होने चाहिए, और जो मैं चीजें बोल रहा हूं, जो आपको लगता है कि मुझे लिखनी चाहिए, तो लिखनी चाहिए। इनकॉर्पोरेटेड वर्ड का मतलब बार बार वापस याद नहीं आएगा, इसलिए मैं जो बोल रहा हूं लिख रहा है। इनकॉर्पोरेटेड अंडरलाइन करना, उसके ऊपर नीचे लिख के लिखना है। क्या लिखना है? रजिस्टर्ड।
क्या लिखना है? रजिस्टर्ड। तो लिख के रखो, बार बार बताऊंगा ना, ये लिखो वो लिखो, वो मन से लिखना चाहिए अपन ने। तो हमेशा टेक्स्ट बुक जो है थ्योरी सब्जेक्ट में सामने रखो, तो जहां जहां जो चीज बोली जाती है तो उसको लिखना काम आपका है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड। तो अभी 2 मिनट के लिए समझने के लिए इनकॉर्पोरेट वर्ड को मैं रजिस्टर्ड से रिप्लेस करता हूं। कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013। बट अभी 2013 के बाद जितने भी कंपनियां बनी थी वो किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट 2013। और क्या बोला यहां पे? और कंपनी और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। रिलायंस कंपनी कौन से लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट 1956। वो पहले वाले कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है। तो चाहे कंपनी पहले वाले लॉ में रजिस्टर्ड हो या फिर रिसेंट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, लेकिन वो कंपनीज लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है? इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, 1956, 2003 डजंट मैटर, ईयर विल नॉट मैटर। एक कंपनी को कंपनी हम तभी कहेंगे व्हेन इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, वेदर इट बी टुडेज वेदर इट बी प्रीवियस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेफिनेशन समझा? तो क्या कहता है डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आया? तो अगर रिलायंस कंपनी जो कंपनी 1956 के अंतर्गत रजिस्टर हुई है वो भी एक कंपनी है, गुजराती एंड गंगूबाई प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है वो भी एक कंपनी है। तो चाहे एक्ट का ईयर कोई भी हो, लेकिन अगर वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, इट विल बी कॉल्ड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऊपर जो अपन ने डेफिनेशन देखा वो क्या था? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु हैव कम टुगेदर फॉर अ लॉफुल पर्पस। ये जनरल डेफिनेशन हो गया। लेकिन जब आप कोर्ट में जाओ तो ये जनरल डेफिनेशन नहीं चलता, कोर्ट में लॉ का डेफिनेशन चलता है। कोर्ट में लॉ का डेफिनेशन चलता है। कोर्ट में लॉ का डेफिनेशन चलता है। कैसे? समझने की कोशिश करो। ऊपर वाला डेफिनेशन क्या कहता है? अभी लॉ का महत्व समझना है तो मैं जो समझा रहा हूं वो ध्यान से समझो। अभी कंपनी किसके मुताबिक चलती है? कंपनी एक एक लाइन पे एक एक लेक्चर डाल रहा हूं तो तुमको बेसिक समझ में आए लॉ का क्या है, इसलिए एक एक लाइन पे एक एक लेक्चर डाल रहा हूं। तो थोड़ा ध्यान से दिमाग लगा के सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। कंपनियां जो होती है कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक चलती है। किसके मुताबिक चलती है? कंपनीज एक्ट 2013। ऊपर जो अपन ने जनरल डेफिनेशन बोला वो क्या बोला था? कि कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु हैव कम टुगेदर फॉर अ लॉफुल पर्पस। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक गुजराती एंड गंगूबाई हैव कम टुगेदर टू फॉर्म अ कंपनी, to form a company, and that business for which they have come together is manufacturing of furniture. Is it a lawful purpose? Yes. ऊपर डेफिनेशन क्या देखा था अपन ने? क्या देखा था डेफिनेशन? कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु हैव कम टुगेदर फॉर अ लॉफुल पर्पस। तो एसोसिएशन में गुजराती और गंगूबाई ये दोनों साथ में आए हैं। यस, दे बोथ हैव कम वॉलंटरी टुगेदर। दोनों भी आपसी सहमति मर्जी से साथ में आए। दोनों ने साथ में सहमति से ये डिसाइड किया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। किसका? फर्नीचर का। और कंपनी का नाम रखेंगे गुजराती एंड गंगूबाई प्राइवेट लिमिटेड। नाम रख दिया गुजराती एंड गंगूबाई प्राइवेट लिमिटेड। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि इन्होंने अपने कंपनी को, जिसका नाम इन्होंने बोर्ड पे तो लगा दिया गुजराती एंड गंगूबाई प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया और कल को गुजराती में और गंगूबाई में झगड़े हुए, है ना? क्योंकि गंगूबाई गाने लगी केसरिया तेरा इश्क है पिया, है ना? और अपना गुजराती परेशान है ढोलीड़ा टन 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 टन, वो बोले टा 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 टा, क्योंकि वो केसरिया करते गंगूबाई निकल गई। गंगूबाई केसरिया केसरिया करते निकल गई और ये अपना ढोलीड़ा ढोलीड़ा ढोकला खाते बैठ गया। अब बात ऐसे है कि अब दोनों में वॉलेंट्री एसोसिएशन नहीं रहा, अब मतभेद हो गए। अब बिजनेस में झगड़े होने लगे। अब सेटलमेंट करना है और सेटलमेंट करने के लिए कोर्ट में जाते हैं और वो बोलता है जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता है कानून इंसाफ करता है, मुझे इंसाफ चाहिए। हम दोनों ने मिलकर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई थी, नाम लगाया था गुजराती एंड गंगूबाई प्राइवेट लिमिटेड। हम दोनों ने फर्नीचर का बिजनेस किया था, लेकिन ये केसरिया केसरिया करती केसर दाना दाना केसर विमल खा के भाग गई।
ये जो है दाना दाना केसर यानी विमल खा के भाग गई, हर दाने में केसर का स्वाद करते केसरिया करते भाग गई। उधर से रणबीर कपूर ने बस क्या क्या नाम है उसका, विमल, रणबीर कपूर ने जैसे विमल दिखाया, गंगूबाई भाग गई हमारे पास से, अब बिजनेस छोड़ के चले गए, हम दोनों में हो गए झगड़े, है ना। तो रणबीर कपूर ने जैसे पैकेट में से विमल निकाला, आलिया भट्ट को दिखाया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, वो दाना दाना केसर देख के आलिया भट्ट भाग गई। अब बिजनेस हो गया चौपट और अब मेरे को हो गया नुकसान। उसने बोला था साथ में बिजनेस करूंगी, ढोलेड़ा ढोलेड़ा ढोकला फाफड़ा थेपला बहुत कुछ खाने वाले थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब बात ऐसा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जो बिजनेस में नुकसान लगा इस 10 लाख की भरपाई गंगूबाई ने करनी चाहिए। जज साहब इंसाफ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही जज साहब, पर इंसाफ नहीं मिल रहा, पर इंसाफ नहीं मिल रहा। जज साहब बोले रुक बेटा मैं करता हूं इंसाफ, अभी हम जिंदा है, अभी हम जिंदा है, हम करेंगे इंसाफ। जज साहब बोले हम करेंगे इंसाफ। लेकिन बात ऐसी है दोस्तों, कानून जज्बातों से नहीं चलता, कानून प्यार से नहीं चलता, कानून सिर्फ सबूत पर चलता है। क्यों गुजराती, किस पे चलता है, सबूत पे। मुझे पता है तुझे दुख हो चुका है, गंगूबाई जा चुकी है, विमल खा चुकी है, अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, तुम आरएमडी खाओ, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, मानिक चंद, है ना, नहीं तो रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, है ना। तो बात ऐसी है, तुझे बड़ा पता है रजनीगंधा, हाँ 160 320 कुछ नहीं चलो ध्यान दो। अब बात ऐसी है, कहां गया है सब केस, कोर्ट में। अब 10 लाख की भरपाई का पैसा कौन मांग रहा है, गुजराती, किससे मांग रहा है, गंगूबाई से, है ना। गंगूबाई बोली मैंने कोई कंपनी नहीं बनाई इसके साथ, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये सरासर झूठ बोल रहा है। क्योंकि हुआ ऐसे, पहले वाले दिन लेक्चर को गुजराती प्रेजेंट था, जब मैं आज रजिस्टर्ड वाला ये जो कंपनीज एक्ट का जो डेफिनेशन समझा रहा था उसमें गुजराती एब्सेंट था, लेकिन गंगूबाई प्रेजेंट थी। गंगूबाई ने सुन लिया डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ गया उसको, उसको मालूम है अपने कंपनी का तो रजिस्ट्रेशन इतना ही है, तो अपनी कंपनी कंपनी है क्या कानून के आंखों में, नहीं। कानून जज्बात से चलता है क्या मुन्ना, ना, कानून किसके मुताबिक चलेगा, कंपनीज एक्ट 2013। गंगूबाई बोल दी साहब अपन ने छोकरे के साथ कोई कंपनी विंपनी नहीं बनाया है तो प्रूफ बताओ, बोलना रजिस्ट्रेशन का मेरे पास। तो झगड़ने लगा, ये कुछ भी बोल रही है, मेरे दिनेश सर ने सिखाया मेरे को। बोले क्या, कंपनी इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ लॉफुल बिजनेस। हमारा बिजनेस लॉफुल है, हम दोनों का वॉलंटरी एसोसिएशन था और हम साथ में एक बिजनेस भी कर रहे थे जो लॉफुल है, तो उसके मुताबिक हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसीलिए तो इतना बड़ा बैनर लगाया हमने, गुजराती एंड गंगूबाई प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन बात ऐसा है जज साहब धोखा दे दिए, एक विमल देख ली तो केसरिया केसरिया करते भाग गए। अब जज साहब 10 लाख की नुकसान की भरपाई चाहिए। जज साहब बोले मैं आपके साथ स्नेह रखता हूं, सहानुभूति रखता हूं। क्या रखता हूं, सहानुभूति रखता हूं। क्या रखता हूं, सहानुभूति रखता हूं। जज साहब बोले बेटा मैं आपके साथ सहानुभूति रखता हूं, लेकिन कानून के हाथ बंधे हैं, कानून सिर्फ कानून से चलता है, सबूत से चलता है, जज्बात से नहीं चलता। तो जज साहब ने बोला लाओ कंपनीज एक्ट, बताओ डेफिनेशन क्या है। As per the Companies Act 2013 section 2 subsection 20 states company means a company which is incorporated under this act or under any previous company law। जज साहब का सवाल, गुजराती जी बताइए क्या आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। तो इनका जवाब था नो, इनका जवाब था नो, इनका जवाब था नो, that my company is not incorporated or registered under the Companies Act 2013। As the answer is no, as the company Gujarati and Gangubhai Private Limited is not registered under the Companies Act, it is not a company। ऊपर वाले डेफिनेशन के हिसाब से भले ही कंपनी होगी, लेकिन कानून के आंखों में वो कंपनी है क्या, नहीं। कानून के आंखों में कंपनी कौन है,
वही कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक है। कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन क्या कहता है? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 of the Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or any of the previous company law। समझ में आ रहा है क्या? दिमाग में घुस रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कल तक जो डेफिनेशन बताया था वो मुंह बोला था, मुंह बोला भाई था। असली सगा वाला भाई तो ये है, असली वाला डेफिनेशन ये है। तो अगर गंगू भाई और गुजराती प्राइवेट लिमिटेड के केस में अगर इसको 10 लाख का क्लेम चाहिए तो इसकी कंपनी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होगी, इनकॉर्पोरेटेड होगी, तो ही कानून के आंखों में वो कंपनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये कहां से पता चलता है? अब जज साहब मन से तो नहीं बोल रहे, जज साहब मन से बोल रहे हैं क्या? नहीं, जज साहब ये किसके आधार पे बोल रहे हैं? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्योंकि अगर आपने बोला जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो वो कंपनीज एक्ट के नियम के हिसाब से ही चलेगी, जज साहब के मन से भी नहीं चलेगी। जज साहब को बहुत लग रहा है यार मेरे बच्चे का नुकसान हो गया, गुजराती साहब का बच्चा है उसका नुकसान हो, उसका नुकसान ना, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून एक्ट के मुताबिक चलता है। एंड द एक्ट विच इज एप्लीकेबल टू कंपनीज इज द कंपनीज एक्ट 2013। आइए ओके, समझ में आया सबको? एक इतने शब्द का मतलब क्या है, लॉ का मतलब क्या है? इट मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन वुड गेट द स्टेटस ऑफ कंपनी इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड। का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड अंडर द रेलेवेंट लॉ ऑफ द कंपनी बिफोर और आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 1956 कब है? बिफोर 2013। और 2013 के बाद जो रजिस्टर्ड है वो भी कंपनी है, और 2013 के पहले भी अगर कंपनी लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है वो भी कंपनी है। हाँ या ना? अब यहां पे एक और डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एच.एल. हैनी। नाउ अंडरस्टैंड, ये वाला डेफिनेशन, ऊपर वाला डेफिनेशन, ये सिर्फ समझने के लिए ठीक है, लेकिन वास्तविकता में कोर्ट में ये डेफिनेशन टिकते हैं क्या? नहीं। कोर्ट में कौन सा डेफिनेशन टिकेगा? ओनली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में जो डेफिनेशन दिया गया है, सिर्फ वही डेफिनेशन जो है कानून के आंखों में सही माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एच.एल. हैनी, वो क्या कहता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर प्रॉफिट, having its capital divided into transferable shares, the ownership of which is condition of the membership। इसका मतलब क्या हुआ? श्रेष्ठ बता, इसका मतलब क्या है? A joint stock company is voluntary association of persons of individual for profit, having its capital divided into transferable share, the ownership of which is condition of membership। मतलब क्या? वही जो ऊपर था। मतलब क्या था? It's a voluntary association of persons which is for profit, whose capital is divided into small shares, and the small shares holding is a title of ownership। अभी ओके? सबको डेफिनेशन समझ में आया? The above definition reveals some of the most important features of the joint stock company. Thus we conclude and we can say that a joint stock company is a incorporated association, is a incorporated association। association होना ठीक है, लेकिन ये association कैसा होना चाहिए? incorporated, यानी कि registered, which is an artificial person created by law, having a separate name, separate legal entity, perpetual succession. The liability of the member is limited. A joint stock company may have a common seal, and each and every word which is given and which I have read right now has to be discussed in detail. That we'll do tomorrow. Thank you.